Now we'll start with the chapter transfer pricing. But before we start this chapter, let me tell you the logic of this chapter, right? So that you can remember the logic and give good answers to the question asked in the exam. तो दोस्तों इसका लॉजिक ये है कि there are two enterprises, one in India and one outside India. Now the enterprise in India can be a resident enterprise or a non-resident enterprise. दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, resident or non-resident. And the second enterprise is outside India, situated in a foreign country. And obviously, this enterprise which is situated outside India is a non-resident enterprise, right? Now what this resident or non-resident enterprise in India is going to do, it is going to shift its income to the non-resident enterprise outside India. You have to shift your income. And if you shift your income to the non-resident enterprise out of India, then what happens is that it becomes exempt from tax. Because as we have seen, in the case of non-resident person, income accruing and arising outside India is not taxable in India. तो ये जो रेसिडेंट एंटरप्राइज है जिसकी इनकम इंडिया में आने वाली थी या नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज है जो भी है, what it is going to do, it is going to shift its income to this non-resident enterprise out of India and thereby save tax. How this is done? Let me tell you what kind of transactions you can do to shift your income. So number one, that suppose this resident non-resident enterprise is importing goods into India. पहला एग्जांपल हम लेते हैं इंपोर्ट का. तो ये इंपोर्ट करते, इस नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज से गुड्स इंपोर्ट, यानी कोई भी फॉरेन कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करके इंडिया में बेचता है. एंड फॉर एग्जांपल the imported goods come at 100 rupees a piece. So normal price of imported goods, if for example we take import, is 100 rupees. ठीक है, और इंडिया में लाके उसको 240 रुपए में बेचता है. सेल प्राइस इंडिया में कितना है? 240. Means he is earning a profit of 140 rupees apart from other costs. Let's forget the cost right now. So there is a value addition of 140 rupees. उसमें profit जो भी होगा. Now what he can do is, this person, the resident enterprise, can set up its proxy firm or maybe a sister concern out of India. यहाँ वो एक non-resident person को create करेगा. कौन create करेगा? यही create करेगा जो resident person है. For example, I am importing the goods into India. So what I am going to do, मैं एक firm या एक company जाके वहां start कर देता हूं foreign country. कर दिया मैंने. अब ये जो नॉन रेसिडेंट पर्सन मेरा ही है, मैं ही हूं ऐसा समझ लीजिए, ये मटेरियल परचेज करेगा 100 रुपए में. ठीक है, वो वहां 100 रुपए में मटेरियल परचेज करेगा और 100 रुपए में परचेज करने के बाद वो हमें देगा 200 रुपए में. कितने में सेल करेगा? 200. और हमारा तो प्राइस 240 है ही, यानी जो हमारा प्रॉफिट पहले 140 रुपीज का आ रहा था वो अब इंडिया में प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सिर्फ 40 रुपीज. मीन्स माई इनकम इन इंडिया विल फॉल डाउन फ्रॉम 140 टू 40. और ये जो 100 रुपए से इनकम हमने यहां कम कर दी है, वो इनकम किसके हाथ में आएगी? ये नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज के हाथ. देखो, ये 100 रुपए में परचेज कर रहा है, 200 में एक्सपोर्ट कर रहा है हमको, टू अस इन इंडिया. सो दिस नॉन रेसिडेंट पर्सन विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज. तो जो मेरा इनकम 140 था उसमें से मैंने 100 रुपीज क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया. आए समझ में? तो शिफ्टिंग ऑफ इनकम है. नाउ इन दिस शिफ्टिंग ऑफ इनकम व्हाट्स गोइंग टू हैपन कि हमारे हाथ में जो टैक्सेबल इनकम है इंडिया में वो कम हो जाएगी और ये नॉन रेसिडेंट पर्सन है उसके हाथ में इनकम आउटसाइड इंडिया राइज होगी, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती. राइट? इट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया. सो वन ट्रांजैक्शन इंपोर्ट. दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं. सेकेंड ट्रांजैक्शन कैन बी एक्सपोर्ट. तो एक्सपोर्ट में क्या होगा कि अगर हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में और उसे नॉर्मली हम एक्सपोर्ट कर रहे थे दुनिया में एट अ प्राइस ऑफ से 1000 रुपीज.
जिसमें समझ लीजिए कि 300 रुपए का हमारा प्रॉफिट था। तो हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 700 था, 300 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करके हम उसको 300 was my profit and I was selling it at 1000 rupees। अब मैं क्या करूंगा कि एक नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज फॉरेन में खोल दूंगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कस्टमर्स को नहीं दूंगा, मैं मेरा ही एक नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज फॉरेन में डाल देता हूं। समझ लीजिए कि एक फॉरेन कंपनी जाके एस्टैब्लिश कर देता हूं, और जो मैं गुड्स यहां 1000 रुपीज में दे रहा था वो अब इस नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज को मैं दूंगा 800 रुपीज में। आई विल सेल इट 800 एंड दिस नॉन रेसिडेंट पर्सन, यहां जो कस्टमर है जिसको हम दे रहे थे, वो इसे वही 1000 रुपीज में सेल कर देगा। राइट? तो अब क्या होगा कि हमारा जो प्रॉफिट 300 रुपए आ रहा था पहले वो अब 200 रुपए से हमने सेल प्राइस कम कर दिया, यानी मेरा प्रॉफिट भी 200 रुपए से कम हो जाएगा। सो माई प्रॉफिट विल नाउ बी ओनली 100। और ये जो 200 रुपए से प्रॉफिट कम हो गया है, तो ये प्रॉफिट अब किसके हाथ में आएगा? ये नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज के हाथ में। देखो, इट इज बाइंग एट 800 एंड सेलिंग एट 1000। तो ये 200 रुपए का प्रॉफिट हमने शिफ्ट कर दिया। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ इनकम है, ठीक है, इसे गवर्नमेंट ने रोकना है। दे हैव टू स्टॉप दिस। सो हाउ विल दे स्टॉप? फॉर दिस वी हैव टू सी दिस चैप्टर कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइसिंग। करेक्ट? तो पहले बेस बता दूं कि ये चैप्टर क्या कहता है, रेमेडी क्या दे रहा है। दिस इज ए मिसचीफ। टैक्स अवॉइडेंस क्या है? मिसचीफ है। अब उसका रेमेडी क्या है? लेट मी टेल यू। रेमेडी ऐसा है कि गवर्नमेंट कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन एक रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज का दूसरे नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज के साथ होता है, ठीक है, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। और ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को हमें यानी कौन? ये जो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज इंडिया वाला है, जिसका इनकम इंडिया में एक्रू हो रहा था, इसे रिकॉर्ड करना होगा एट आर्म्स लेंथ प्राइस। यानी ये इंपोर्ट ट्रांजैक्शन हो या एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन हो या शिफ्टिंग ऑफ इनकम का कोई भी ट्रांजैक्शन हो, परचेज सेल, कोई भी ट्रांजैक्शन, लोन लेना, लोन देना, सर्विसेज लेना, सर्विसेज देना, कोई भी ट्रांजैक्शन, एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन shall be recorded at arm's length price. Now what is arm's length price? Arm's length price का मतलब है एक प्राइस जो आप चार्ज करते हैं when you sell or buy goods from non-associated enterprises. यानी उस आदमी के साथ जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं जो आपका एसोसिएटेड नहीं होता और ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, तो उसको हम कहते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस। तो दो बातें हैं, ये तो एक बात बताई मैंने कि ट्रांजैक्शन किसके बीच में होना चाहिए? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। और दूसरी बात कि ये दोनों पर्सन्स जो है, दीज टू पीपल, दिस पर्सन एंड दैट पर्सन शुड बी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो अगर ये दो चीजें हैं, एक तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है और दूसरा ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में है, अगर ये दो चीजें एग्जिस्ट करती है तो हमें ये ट्रांजैक्शन को किस पे रिकॉर्ड करना है? आर्म्स लेंथ प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो ये चैप्टर गवर्नमेंट ने डाला था टू कर्ब द टैक्स अवॉइडेंस दैट वाज टेकिंग प्लेस बाय शिफ्टिंग ऑफ इनकम फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। तो ये तो पुराना है। फिर इसमें लास्ट ईयर एक और पॉइंट ऐड हुआ था, और वो ये कि कुछ केसेस में ये डोमेस्टिक जो एंटरप्राइजेस है वो भी लफड़ा करते हैं, वो भी क्या करते हैं कि टैक्स अवॉइडेंस करते हैं। खास करके जब एक एंटरप्राइज SEZ वाला जो सेक्शन 10A 10AA में जिसको एग्जेम्पशन है, या 80IA सीरीज में जो हमने बहुत सारे बिजनेसेस देखे हैं जिनको 10 साल 15 साल के टैक्स बेनिफिट्स है, एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, वो लोग क्या करते हैं कि दे एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विद अनदर इंडियन एंटरप्राइज। दोनों इंडियन होते हैं, सेलर एंड बायर, लेकिन वो इस तरह से ट्रांजैक्शन करते हैं कि जिसमें ये जो एंटरप्राइज है जिसको एग्जेम्पशन अवेलेबल है वो इनकम को बढ़ा देता है, क्योंकि उसकी इनकम तो एग्जेम्प्ट है,
और जो बाहर वाला एंटरप्राइज है जिसको एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है उसकी इनकम को कम कर दिया जाता है. तो दे एंटर इनटू दीज ट्रांजैक्शंस बाय विच द इनकम ऑफ द एलिजिबल बिजनेस, जो डिडक्शन के लिए एलिजिबल है, उसकी इनकम को हम बढ़ा देते हैं क्योंकि वो तो वैसे भी डिडक्ट होकर नील हो जाएंगी. और एक दूसरा एंटरप्राइज जो है उसको प्रॉफिट होना चाहिए था और वो टैक्सेबल था तो उसको कम कर दिया जाता है. तो ऐसे जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस है, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस उन्हें कहते हैं, और वो भी इस चैप्टर के अंदर कवर किए गए हैं. सो राइट नाउ दिस चैप्टर इज एप्लीकेबल टू टू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस. वन इज दिस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बिटवीन associated enterprises and second is specified domestic transactions. Right? इतना समझ में आपको? So let's start with the chapter और देखते हैं कि रेमेडी क्या है, ये आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकाला जाता है और एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस किसको कहते हैं और आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकालेंगे. राइट? सो लेट्स स्टार्ट. सेक्शन 92 है, वो कहता है कि एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, देखिए, बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, shall be computed at arm's length price. किससे कंप्यूट करना है हमें? आर्म्स लेंथ प्राइस पे कंप्यूट करने का. ओके. और आर्म्स लेंथ प्राइस का डेफिनेशन दिया है. What is arm's length price? It means a price which is applied or proposed to be applied in a transaction between non-associated enterprises in uncontrolled conditions. यानी दो जब नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज होते हैं, वन टू वन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो अनकंट्रोल्ड कंडीशंस में जब कॉन्ट्रैक्टिंग होता है तो क्या प्राइस चार्ज करते हैं, उसको कहा जाता है आर्म्स लेंथ प्राइस, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में फेयर मार्केट वैल्यू भी कहते हैं या फेयर प्राइस भी कहते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज आर्म्स लेंथ प्राइस. सो लेट्स सी. अब सबसेक्शन 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है. वेयर इन एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया कि दो केसेस में हम ये चैप्टर को लगाने वाले हैं. टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस एंटर इनटू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट और अरेंजमेंट फॉर एलोकेशन और अपोर्शनमेंट और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कॉस्ट और एक्सपेंस, तो उसे भी हमें आर्म्स लेंथ प्राइस पे रिकॉर्ड करना है. व्हाट दिस मीन्स इज कि जैसे कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके कुछ ब्रांचेस इंडिया में है या सब्सिडरीज इंडिया में है और कुछ ब्रांचेस या सब्सिडरीज इंडिया के बाहर है. तो वो कंपनी क्या करती है कि जितने भी उसके ब्रांचेस या सब्सिडरीज है तो हेड ऑफिस कॉमन एक्सपेंस कर देती है और वो एक्सपेंस करने के बाद इनको एलोकेट किया जाता है और वो एलोकेटेड एक्सपेंस जो है वो इंडिया का ब्रांच या सब्सिडरी रिकॉर्ड करेगा एज एन एक्सपेंस. तो ये कंपनी क्या कर सकती है कि अगर उन्होंने कॉमन एक्सपेंडिचर 5 करोड़ का किया है, जो कि 5-6 ऑफिसेज है उनके लिए होता है, उसमें से कुछ ऑफिस दुबई में है, कुछ ऑफिस इंडिया में है, कुछ ऑफिस और कंट्रीज में. सो व्हाट हैपेंस इज कि इंडिया का टैक्स रेट ज्यादा होने की वजह से वो इंडिया में जो एक्सपेंस एलोकेट करेंगे वो ज्यादा कर देंगे. अगर 5 करोड़ में से 3 करोड़ इंडियन ऑफिस का एक्सपेंस मान लिया गया तो यहां का प्रॉफिट कम हो जाएगा और दुबई में तो टैक्स है ही नहीं, आप सब जानते हैं, तो वहां पे कॉस्ट को एलोकेट ही नहीं करेंगे. हालांकि कॉस्ट उसके लिए भी था लेकिन उसको एलोकेट नहीं करेंगे. तो उससे क्या होगा, दुबई ब्रांच का प्रॉफिट बढ़ेगा और इंडियन ब्रांच का प्रॉफिट कम हो जाएगा. इसकी वजह से क्या होगा कि इंडिया में टैक्स कम लगेगा. इसका मतलब यह है कि इंडियन ब्रांच की इनकम फॉरेन ब्रांच में शिफ्ट हो गई. राइट? तो उसे भी ये जो अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंस होता है या कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कॉमन एक्सपेंस, उसे भी आर्म्स लेंथ प्राइस पे रिकॉर्ड करना होता है. राइट? तो उसे भी अपन आर्म्स लेंथ प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे. 2A में लिखा है कि एनी अलाउंस फॉर एन एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट एलोकेशन ऑफ एनी कॉस्ट और एक्सपेंस और इनकम इन रिलेशन टू स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन शैल ऑल्सो बी कंप्यूटेड हैविंग रिगार्ड टू आर्म्स लेंथ प्राइस. तो मैंने आपको लॉजिक बताया. डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस जो है, जिसको हम बाद में देखेंगे कि विच डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस आर कवर्ड हियर, मैं आपको बताऊंगा, उसे भी आर्म्स लेंथ प्राइस पे रिकॉर्ड करना है. एक्सेप्शन में दिया है, प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन अ केस वेयर द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम or determination of cost or expense has the effect of reducing the income chargeable to tax or increasing the loss.
अगर आर्म्स लेंथ प्राइस लगाने से आपका प्रॉफिट कम होता है या लॉस बढ़ता है तो आपको आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं लगाने का है। अब इसका लॉजिक क्या है मैं आपको समझा दूं। वेरी सिंपल लॉजिक है इसका। देखिए हमने क्या देखा इसमें कि हम इनकम को इंडिया से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, राइट, टू अ नॉन रेसिडेंट पर्सन। वी आर शिफ्टिंग द इनकम टू अ नॉन रेसिडेंट पर्सन आउटसाइड इंडिया। तो हम जो इनकम को शिफ्ट कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं, कोई बता सकता है? वे वी आर शिफ्टिंग द इनकम, वो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं। हम इनकम को शिफ्ट कर रहे हैं एक नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज को, करेक्ट। ये जो नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज है जिसको हम इनकम शिफ्ट करते हैं, दिस वाज अवर नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज जिसको हमने इनकम शिफ्ट किया था, करेक्ट, इसको हमने इनकम शिफ्ट किया। ये नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज कौन से कंट्री का है? विच कंट्री? ये उस कंट्री का होता है जहां टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स लगता ही नहीं है, या अगर टैक्स लगे भी तो बहुत कम लगता है एज कंपेयर्ड टू इंडिया। लाइक फॉर एग्जांपल दुबई, UAE. When you shift your income to this non-resident enterprise and if he is of UAE, he is not going to pay any tax. क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में टैक्स है ही नहीं। और दुनिया के ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहां टैक्स नहीं है, और अगर है भी तो बहुत कम है, या अगर है भी तो वहां के कानून जो है वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं होने की वजह से टैक्स अवॉइडेंस इजीली हो जाता है। यू कैन हाइड योर इनकम इन सच प्लेसेस। तो उसको टैक्स हेवंस के नाम से हम जानते हैं, टैक्स हेवंस। तो वो हम कर रहे थे। अब कभी कभी उल्टा भी तो हो सकता है ना कि ये नॉन रेसिडेंट पर्सन ऐसे कंट्री का है जहां पे इंडिया से ज्यादा टैक्स है। देयर आर मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच आर हैविंग हायर टैक्स रेट्स एज कंपेयर्ड टू इंडिया। वहां के लोगों को इंडिया टैक्स हेवन लगेगा और उनका कंट्री टैक्स हेल लगेगा। So they might enter into transaction with an Indian enterprise to shift their income from their country to India. ऐसा भी हो सकता है। एक नॉन रेसिडेंट ऐसे कंट्री का है जहां पे इंडिया से ज्यादा टैक्स रेट, तो वो लोग क्या करेंगे कि उनकी इनकम इंडिया शिफ्ट करेंगे। यानी दिस नॉन रेसिडेंट पर्सन इज शिफ्टिंग इनकम टू रेसिडेंट पर्सन ऑफ इंडिया। अब उसने क्या किया कि ट्रांजैक्शन को इस तरह से किया कि इधर से 200 मिलियन की इनकम को शिफ्ट कर दी। अब इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये रेसिडेंट एंटरप्राइज है और ये अपना ट्रांजैक्शन नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज के साथ कर रहा है, सो ही हैज टू रिकॉर्ड हिज इनकम एट आर्म्स लेंथ प्राइस। अब ये आदमी अगर अपनी आर्म्स लेंथ प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस फेयर प्राइस से अगर इनकम रिकॉर्ड करेगा तो उसका इनकम तो कम हो जाएगा। कम क्यों होगा? क्योंकि अभी उसका इनकम इन्फ्लेटेड दिख रहा है। क्यों इन्फ्लेटेड दिख रहा है? क्योंकि इसने इसको इनकम शिफ्ट की है। तो समझ लीजिए कि इसका इनकम अगर 250 मिलियन दिख रहा है, जिसके अंदर 200 तो इन्फ्लेटेड है, बाकी एक्चुअल में तो 50 ही होनी चाहिए थी, तो ये कहेगा वेरी गुड चैप्टर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मी, आई एम सो लकी, माई इनकम विल बी नाउ टैक्सेबल एट ओनली 50 मिलियन एंड नॉट 250 विच इज शोन बाय माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो वो तो बहुत खुश हो जाएगा कि यार ये 250 मिलियन मेरे बुक्स में दिख रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि आप आर्म्स लेंथ प्राइस से अपना प्रॉफिट निकाले, तो अगर वो आर्म्स लेंथ प्राइस से प्रॉफिट निकालेगा तो उसका तो सिर्फ 50 जाएगा, सो ही विल पे टैक्स ऑन ओनली ऑन 50 मिलियन प्रॉफिट। तो बहुत खुश हो गया। तो ये जब चैप्टर आया था ओरिजिनली 98-99 में आया था, उस वक्त में ये लिखा था कि आपको आर्म्स लेंथ प्राइस पे कैलकुलेशन करना है। फिर जब गवर्नमेंट ने देखा कि ऐसे केसेस सामने आ रहे निकल के, तो उन्होंने अगले साल उसमें अमेंडमेंट डाले और उसमें लिखा कि नहीं चलेगा, इफ योर इनकम इज रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस, नहीं चलेगा, आपको आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं लगाने का है, आपको अपने आर्म्स बंद कर लेने हैं और बुक प्रॉफिट पे टैक्स पे करने का है। सो दिस पर्सन विल पे टैक्स ऑन फुल बुक प्रॉफिट एंड नॉट ऑन आर्म्स लेंथ प्राइस। तो ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में तो उसमें ऐसा दिया रहता है कि इफ यू आर अप्लाइंग द आर्म्स लेंथ प्राइस, योर प्रॉफिट विल रिड्यूस। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है और आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने से प्रॉफिट कम हो रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे? टैक्स पेएबल विल बी ऑन बुक प्रॉफिट एंड नॉट आर्म्स लेंथ प्राइस प्रॉफिट। आए समझ? वेरी गुड।
नाउ लेट्स गो टू 92A, मीनिंग ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक आध बार पूछ सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी, बहुत फास्ट। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आज तक कभी आए नहीं है, बट जस्ट रिवाइजिंग। उन्होंने कहा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस इन रिलेशन टू अदर एंटरप्राइज मीन्स, पहला पॉइंट है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कंट्रोल और कैपिटल। दो वर्ड, आप तीन वर्ड याद रखेंगे, मैनेजमेंट, कंट्रोल और कैपिटल ऑफ द अदर एंटरप्राइज। बहुत सिंपल पॉइंट है। एक एंटरप्राइज के पास दूसरे एंटरप्राइज के बिजनेस में कंट्रोल है, कैपिटल इन्वॉल्वमेंट है, या मैनेजमेंट का कंट्रोल है। अब देखो, कंट्रोल वर्ड जब हम बोलते हैं तो उसमें तीनों चीज कवर हो जाती है। मैनेजमेंट से भी कंट्रोल आता है, और कैपिटल अगर अपना है उधर लगा हुआ तो भी अपना कंट्रोल आता है। लेकिन तो भी गवर्नमेंट ने तीन वर्ड को अलग अलग दिए। एक तो मैनेजमेंट है, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यानी आप सब तो जानते हैं, शायद नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं कि माई सेल्फ फारूक हक, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फारूक हक क्लासेस, आई एम ऑल्सो ऑन द गवर्निंग बोर्ड ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अभी क्या है कि बहुत सारी बातें हैं, मैंने आपको अभी तक बताई नहीं है, मगर ऐसा है। तो मैं वहां गवर्निंग बोर्ड का डायरेक्टर भी हूं, गवर्निंग बोर्ड मेंबर। तो मेरा जो एंटरप्राइज है फारूक हक क्लासेस और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हम दोनों क्या बन जाएंगे? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। राइट, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, पहला पॉइंट। सब एग्जांपल्स हैं याद रखने के लिए। दूसरा है कैपिटल। कैपिटल यानी कि मनी इन्वॉल्वमेंट। आई हैव इन्वेस्टेड मनी इन इन्फोसिस, खैर वो तो इंडियन कंपनी है। आई हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड मनी इन माइक्रोसॉफ्ट। आप सब जानते होंगे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट के 32% शेयर्स हैं। हाँ, तो मैं और माइक्रोसॉफ्ट क्या बन गए? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो अगर ये दोनों को हम हटा दें, मैनेजमेंट और कैपिटल को, तो फिर बचता है कंट्रोल। तो कंट्रोल का मतलब यहां पे है बिजनेस कंट्रोल से। क्या कंट्रोल? बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप सब जानते हैं कि बोइंग एंड एयरबस दो मेन मैन्युफैक्चरर्स है ऑफ एयरक्राफ्ट्स, पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स इन इंडिया, सॉरी इन द वर्ल्ड। और आप सब शायद नहीं जानते होंगे कि वो जो एयरक्राफ्ट्स है वो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से बनता है, और वो जो पेटेंट है वो मेरा है। अब ऑफ कोर्स आप जानते हैं, पहले नहीं जानते होंगे। तो मैंने उनको पेटेंट्स दिए हुए हैं फॉर यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट। अगर उनके पेटेंट हटा दूं तो वो कंपनियां ठप हो जाएंगी, उनका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, बिकॉज दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर विदाउट माई पेटेंट। यानी मेरे पास उनके बिजनेस की चाबी है, मैं चाहूं तो उनके बिजनेस को इधर से उधर घुमा सकता हूं। तो मैं और वो क्या बन गए? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो ये एक भी जोक नहीं है, हाँ, सब एग्जांपल से सब काम के अभी मैं आपको बताता हूं एक एक करके। तो सबसेक्शन 1 में पहले तो दिया है कि पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कंट्रोल और कैपिटल ऑफ द अदर एंटरप्राइज, ये एक डायरेक्ट है। और दूसरा है पेरेंटल कंट्रोल। एक डायरेक्ट कंट्रोल है, जैसे वाइफ कंट्रोल्स हस्बैंड, सबको मालूम। दूसरा है पेरेंटल कंट्रोल। दो भाई है, वो आपस में तो एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन पिताजी दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो सेकेंड पॉइंट, इसको पेरेंटल कंट्रोल कहेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर पर्सन्स हु पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली through one or more intermediaries in the management, control, capital are the same persons who participate directly or indirectly or through one or more persons in the management, capital or control of the other enterprise. Same चीज है, पार्टिसिपेशन सेम चीज का है, कैपिटल, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। लेकिन क्या है ये? इसको पेरेंटल कंट्रोल कहते हैं। यानी कि ये ए है और ये बी और सी दोनों में पार्टिसिपेट करता है। ए पार्टिसिपेट्स इन बीज कैपिटल ऑल्सो एंड इन सीज कैपिटल ऑल्सो। बी के भी शेयर्स उसके पास है, सी के भी शेयर्स उसके पास। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आई हैव गॉट शेयर्स ऑफ इन्फोसिस एंड आई हैव गॉट शेयर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो इन्फोसिस इंडियन एंटरप्राइज और माइक्रोसॉफ्ट फॉरेन एंटरप्राइज, ये दोनों क्या बन जाएंगे? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। अब ये जनरल डेफिनेशन है 1 में, और फिर जो 2 है, सब सेक्शन 2, उसमें स्पेसिफिक डेफिनेशन दिया है, स्पेसिफिक केसेस दिए हैं जहां पे हम एसोसिएटेड मानेंगे। तो इसमें क्या क्या है देखिए।
पहले तो ए, बी, सी और डी जो 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट को आप एरो लगा करके 4 पॉइंट पे you put an arrow and you write down there capital. तो हमने देखा ना 3 चीजें हैं, पार्टिसिपेशन इन कैपिटल, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो पहले जो 4 पॉइंट है वो कैपिटल से रिलेटेड है। अब कैसे देखो, पहला तो सिंपल है, one enterprise holds directly or indirectly shares carrying not less than 26% of the voting power of the other enterprise. कितना वोटिंग पावर है? 26% वोटिंग पावर है दूसरे एंटरप्राइज का आपके पास। डायरेक्ट कंट्रोल वाला है ये। 26% वोटिंग पावर आपके पास। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट का मेरे पास कितने शेयर्स है? 31, 26 से ज्यादा है, सो वी आर एसोसिएटेड। दूसरा है पेरेंटल कंट्रोल। एक ही पर्सन या एंटरप्राइज है जिसके पास उस कंपनी के भी 26% है और इस कंपनी के भी 26% है। तो ये दोनों कंपनियां आपस में क्या हो गई? एसोसिएटेड। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट के 31 है और अपनी इन्फोसिस के 27 है, तो दोनों जगह 26-26 के ऊपर है, तो मेरी वजह से ये दोनों आपस में क्या बन गए? एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तीसरा है लोन का मामला है। लोन है तो एक फॉरेन कंपनी है जिसके टोटल एसेट्स 100 करोड़ के हैं। टोटल एसेट्स कितने के हैं? 100 करोड़। 100 करोड़ के हैं और उनके पास लोन भी है, लोन लेकर एसेट खरीदेंगे। कैपिटल भी रहता है, लोन भी रहता है कोई भी कंपनी में, तो उनका लोन भी है। तो 100 करोड़ के एसेट्स है उनके पास और मैंने उस कंपनी को लोन दे के रखा है। कितना लोन दे के रखा है? 51% ऑफ इट्स एसेट्स या उससे ज्यादा। देखो, नॉट लेस देन 51% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द अदर एंटरप्राइज। यानी अगर उनका 100 करोड़ का टोटल एसेट्स है तो मैंने उसको लोन दिया है कितना? 51 से ज्यादा। इफ दैट इज सो देन वी बिकम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो तीसरा मामला जो है वो लोन का है। यहां हमने जो वर्ड कैपिटल लिखा है उसका मतलब मनी से होता है, नॉट इक्विटी। व्हेन आई से कैपिटल इट मींस मनी। और चौथा जो है वो बैंक गारंटी का मामला है, या गारंटी, नॉट बैंक बट गारंटी। उस कंपनी ने, फॉरेन कंपनी है, उसने कुछ लोन वोन लिए हुए हैं और उसके टोटल लोन के 10% लोन्स का गारंटी मैंने दिया हुआ है। आई हैव गिवन गारंटी फॉर दैट कंपनी टू दी लेंडर्स। तो एक कंपनी है फॉरेन में, वो बोरोअर है और लेंडर से उन्होंने लोन लिया है और मैंने उस फॉरेन कंपनी के बिहाफ में गारंटीज दी है। कितनी गारंटी दी है? उसके टोटल लोन का 10% से ज्यादा। तो मैं और वो बोरोअर कंपनी फॉरेन की, हम क्या बन गए? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। फिर आगे चलते हैं। ईएनएफ जो है उसको आप ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं, ईएनएफ, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो 2 पॉइंट पे मैनेजमेंट के, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो उसमें क्या है? सिंपल है, जैसे मैंने कहा था आपसे कि आई हैव द राइट टू अपॉइंट द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जिसको कहते हैं। तो फिर हम क्या बन गए? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो वहां लिखा है मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स or members of the governing board or one or more executive directors or executive members of the governing board of an enterprise are appointed by the other enterprise, are appointed by other enterprise। और उसके बाद जो है वो पेरेंटल वाला है फिर से। तो दोनों का मैं आपको देखो चार्ट बताता हूं कैसे आएगा। यहां पे एक फॉरेन एंटरप्राइज है, नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज में लिखूंगा, और यहां अपना रेसिडेंट एंटरप्राइज। अब ये आपस में कोई भी हो सकता है, नॉट जस्ट के रेसिडेंट ने फॉरेन को कंट्रोल करना चाहिए, इट कैन बी वाइस वर्सा, कंट्रोल कैन बी वाइस वर्सा। अब ये नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज है तो इसके पास टोटल डायरेक्टर्स जो है वो है 10, जिसके अंदर
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है 3 एंड अदर डायरेक्टर्स, सिंपल जो डायरेक्टर्स रहते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कहते हैं, वो है 7, तो टोटल 10, जिसमें 3 और 7 का रेशियो। नाउ इफ दिस रेसिडेंट एंटरप्राइज अपॉइंट्स एनी वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, यानी 3 जो है वो 3 में से अगर ये एक को भी अपॉइंट करता है यहां, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन जाएंगे। 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इनफ। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो तीनों को अपॉइंट करने का राइट नहीं है, तो फिर ये 10 में से मेजॉरिटी, 10 में से मेजॉरिटी का मतलब होता है 6 अदर डायरेक्टर्स। तो ये बात याद रखो, जब मेजॉरिटी देखते हैं तो उसमें 7 का मेजॉरिटी नहीं देखेंगे, उसमें बोला है मेजॉरिटी ऑफ टोटल डायरेक्टर्स, तो टोटल तो है 10, तो 10 का मेजॉरिटी हुआ 6, 5 के ऊपर यानी 6, तो या तो वो 6 अदर डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है आउट ऑफ 7, या फिर ये 3 में से एक को भी अगर कर देता है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। राइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है कि देयर इज अ कॉमन पर्सन, देयर इज अ कॉमन पर्सन है एक, और ये पर्सन क्या कर रहा है कि यहां एक रेसिडेंट एंटरप्राइज है, यहां एक नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज है, वो इसमें भी और इसमें भी दोनों तरफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का राइट रखता है। 1 और मोर एग्जीक्यूटिव, 1 और मोर एग्जीक्यूटिव, या मेजॉरिटी यानी मोर देन हाफ ऑफ टोटल डायरेक्टर्स, यहां भी 50% ऑफ टोटल डायरेक्टर्स। तो अगर ऐसा है, या ऐसा भी हो सकता है कि यहां वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है, यहां मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहा है, तो फिर ये दोनों क्या बन जाएंगे? ये रेसिडेंट और ये नॉन रेसिडेंट, दे विल बी कॉल्ड एज एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो नंबर है GNH, बल्कि आप लिख सकते हैं GH एंड I, GH और I को आप ब्रैकेट लगाकर लिख दीजिए, GH और I को ब्रैकेट लगाकर आप लिख दीजिए कंट्रोल, बिजनेस कंट्रोल। क्या लिखेंगे? बिजनेस कंट्रोल, GH एंड I, बिजनेस कंट्रोल। अब इसमें क्या है देखो, बिजनेस कंट्रोल में सबसे पहला पॉइंट है G, उसमें लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और आर्टिकल्स। एक एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरर है और उसका जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग है वो डिपेंड करता है ऑन यूज ऑफ कॉपीराइट, नो हाउ, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसको हम सब मिला के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं, ऑफ अदर एंटरप्राइज। जो मैंने आपको कहा कि मेरे पास पेटेंट है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट्स, और ये पेटेंट मैंने दिया हुआ है बोइंग कंपनी को फॉर मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट्स। मेरे पेटेंट के बिना उनका मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता, तो हम दोनों को क्या मानेंगे? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। अब ये तो आपको जोक लगता होगा, ऑब्वियसली है, लेकिन इंडिया में आप देखिए जितने मैन्युफैक्चरर्स है, लाइक ऑल कार मैन्युफैक्चरर्स, होंडा मोटर्स इंडिया, ये किसकी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है? होंडा मोटर्स ऑफ जापान। तो होंडा मोटर कंपनी जो इंडिया की है और होंडा मोटर कंपनी जो जापान की है, वो क्या बनेगी? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी के बिना यहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता। तो अपने इंडियन कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है ऑन द पेटेंट्स, नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है एच में ऐसा है कि रॉ मटेरियल सप्लाई का पॉइंट, यानी एक मैन्युफैक्चरर है और एक दूसरी एंटरप्राइज रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, और इसका अगर टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट 1000 किलोग्राम्स का है फॉर एग्जांपल, तो ये जो एंटरप्राइज है वो उसका 90% या उससे ज्यादा सप्लाई करती है। कितना? 90% या उससे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो दूसरा एंटरप्राइज सप्लाई करता है, तो इन दोनों को क्या माना जाएगा? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो वो उसमें लिखा है। उसमें भी 2 पॉइंट है, मैं आपको बताता हूं डायग्राम से।
उसमें 2 पॉइंट ऐसे हैं कि पहला तो ऐसा है कि एक एंटरप्राइज है, फॉर एग्जांपल रेसिडेंट, और ये नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज है, ठीक है। अगर ये इसको सप्लाई करता है, इसका रॉ मटेरियल समझ लो कि 1000 किलोग्राम्स का टोटल रिक्वायरमेंट है, और ये अकेला ही सप्लाई करता है 900 या उससे ज्यादा, यानी 90% या उससे ज्यादा जो है वो सप्लाई कर रहा है, तो ये दोनों क्या बन गए, एसोसिएटेड बन गए। ये तो एक केस। दूसरा केस ऐसा है कि ये रेसिडेंट एंटरप्राइज है जिसका रिक्वायरमेंट वही 1000 kgs का है ऑफ रॉ मटेरियल, और ये एक नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज है, वो इसे सप्लाई करता है 600 kgs, तो वो तो 90% से कम हुआ, फिर ये एसोसिएटेड नहीं होंगे। लेकिन अपना तो एग्रीमेंट था ना उसके साथ कि तुम्हें वो अपना ही है, एसोसिएटेड है, हमने तो खास उसको बनाया था ना वहां नॉन रेसिडेंट को टैक्स प्लानिंग के लिए, तो अगर हम बाकी लोगों से खरीदेंगे तो फिर मतलब नहीं आएगा। तो हमने उसे ही कहा कि तुम तुम्हारे 4-5 बंदों को अपॉइंट करो अलग अलग नाम से। तो ये नॉन रेसिडेंट पर्सन क्या करेगा कि 2-4 लोगों को इधर अपॉइंट करेगा, A, B, C, वो इनको माल सप्लाई करेगा और फिर कहेगा कि आप है ना तो ये रेसिडेंट पर्सन जो है उसको सप्लाई कीजिए, तो वो इनको सप्लाई करे। और सब मिला के सपोज कि ये 100 किलो सप्लाई कर रहा है, ये 150 किलो सप्लाई कर रहा है, और ये अनदर 120, तो अगर ये सब मिलाएंगे अपन तो कितना हो रहा है, 6, 7, 8, 9, 70, यानी 90% के ऊपर चली गया। अगर सबको मिलाए तो मोर देन 90% हो गया। वेरी गुड। लेकिन हम इनको ऐड कब करेंगे, ये इनका जो सप्लाई है इसको ऐड तब करेंगे जब ये लोगों को ये नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज ही अपॉइंट करता है, और इनके जो टर्म्स ऑफ सेल है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सप्लाई जो है, वो भी इन इफेक्ट ये नॉन रेसिडेंट पर्सन ही डिसाइड करता है। यानी कौन बेचेगा और किस प्राइस पे बेचेगा, बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, ये सब किसने डिसाइड किए, ये नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज। तो फिर गवर्नमेंट कहता है कि हम ये सबको क्लब कर देंगे, एग्रीगेट कर देंगे, और एग्रीगेट करके अगर 90% से ऊपर जाता है सो दे विल बी डीम्ड टू बी एसोसिएटेड। अब कौन कौन एसोसिएटेड हुआ, रेसिडेंट पर्सन के साथ वो जो नॉन रेसिडेंट है वो तो एसोसिएटेड है ही, ये तीनों भी एसोसिएटेड माने जाएंगे। यानी हमें आर्म्स लेंथ प्राइस ये चारों केस में निकालना होगा। अंडरस्टूड? वेरी गुड। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज 100% ऑफ द गुड्स और आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस बाय वन पर्सन आर सोल्ड टू द अदर एंटरप्राइज। अब ये उल्टा केस है, सेल वाला केस। तो सेल वाला केस कैसा है मैं आपको भी बता दूं। सेल वाले केस में ऐसा है कि ये जो रेसिडेंट एंटरप्राइज है ये यहां टोटल मैन्युफैक्चरिंग करता है 100 यूनिट्स का। इसका टोटल मैन्युफैक्चरिंग अगर 100 यूनिट्स का है तो ये पूरा ही पूरा एक नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज को सप्लाई कर देता है, पूरा 100%। तो इसको अपन क्या मानेंगे, एसोसिएटेड मानेंगे। दूसरा ऐसा है कि ये रेसिडेंट एंटरप्राइज है जिसके पास 100 यूनिट्स है। ये नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज क्या करता है कि फिर 3-4 लोगों को अपॉइंट कर देता है और कहता है कि आप मुझे 100 दीजिए, लेकिन कैसे कि पूरे 100 मुझे मत दीजिए, नहीं तो हम एसोसिएटेड में आ जाएंगे। सो यू सप्लाई मी 60 और बाकी जो 40 है वो इन तीनों को आप सप्लाई करिए। तो इसको हमने 20 दिए, इसको 10 दिए, इसको 10 दिए, लेकिन टोटल मिला के कितने हो गए, 100 हो गए। और ये तीनों लोगों को किसने अपॉइंट किया था, ये नॉन रेसिडेंट पर्सन ने ही अपॉइंट किया था। और इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ऑफ सेल टू दीज पीपल, दिस विल ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय दिस नॉन रेसिडेंट पर्सन। ये तीनों को अपॉइंट किसने किया, नॉन रेसिडेंट ने किया। उसे अपॉइंट किया और कहा कि इसको माल बेचो, तो हमने इनको भी माल बेचा, कुछ उसको डायरेक्टली दिया, सब मिला के देखे तो 100 यूनिट्स होता है, फुल 100%। तो फिर इन सब को क्या मानेंगे, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। और हर एक केस में आपको कौन सा प्राइस निकालना पड़ेगा, आर्म्स लेंथ प्राइस। वेरी गुड। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है JKL, ये सिंपल है, ये सीधा सीधा इंडिविजुअल के पॉइंट्स है। एक एंटरप्राइज एक इंडिविजुअल का है और जो दूसरा एंटरप्राइज है फॉरेन में,
वो या तो उसी इंडिविजुअल का है या उसके कोई रिलेटिव का है, तो इनको एसोसिएटेड मानेंगे। एक भाई ने, अनिल ने इंडिया में फैक्ट्री डाली, मुकेश ने फॉरेन में फैक्ट्री डाली, तो दोनों क्या बन जाएंगे? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, क्योंकि दोनों भाई भाई है। या फिर एचयूएफ का केस है, एक फैक्ट्री एचयूएफ की है और फॉरेन एंटरप्राइज जो है वो या तो एचयूएफ का ही है या उसके किसी मेंबर का है या रिलेटिव का है। तो वो पॉइंट है, एक इंडिविजुअल का, एक एचयूएफ का है और एक पार्टनरशिप फर्म का है। नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, एल। वन एंटरप्राइज इज अ फर्म or association of persons or body of individual, and the other enterprise is a partner. कौन सा पार्टनर? जिसके पास इस फर्म में 10% से ज्यादा इंटरेस्ट है। तो इधर एक फर्म है, समझ लो कि इंडिया में एक फर्म है और फॉरेन में उसका एक पार्टनर रहता है, और वो पार्टनर के पास इस फर्म के कितना परसेंट प्रॉफिट है? 18% शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो हम ये फर्म और वो पार्टनर को क्या मान लेंगे? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो इतने तो स्पेसिफिक पॉइंट्स है। लास्ट एम है, वो कुछ नहीं है, वो कहता है कि सच अदर एज मे बी प्रिस्क्राइब, सच अदर रिलेशनशिप्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो वो जब वक्त आएगा तो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, उससे अपने को मतलब नहीं। फिर 92B में दिया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है, तो वो तो सिंपल है, मैंने आपको बताया पहले, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट विथ अ नॉन रेसिडेंट is called as international transaction। और ट्रांजैक्शन में क्या क्या आता है देखो, परचेज, सेल, लीज ऑफ टैंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, जिसमें ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब आएंगे इसमें। सर्विसेज भी आएगी, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, लेंडिंग और बोरोइंग, मनी, पैसे का लेन देन भी आएगा, और एनी अदर ट्रांजैक्शन विच हैज अ बेयरिंग ऑन प्रॉफिट, इनकम, लॉसेज और एसेट्स सब आएंगे। लीज ऑफ एसेट्स भी आएगा, परचेज ऑफ एसेट्स, लीज ऑफ एसेट्स सब आएंगे। And mutual agreement for allocation or apportionment or contribution of any cost or expense, जैसे मैंने कहा था आपसे हेड ऑफिस एक्सपेंस का एलोकेशन होता है, तो उनको भी एसोसिएटेड मानेंगे। फिर देखो क्या लिखा है, सबसेक्शन 2 क्या कहता है? ट्रांजैक्शंस डीम्ड टू बी बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, डीम्ड टू बी बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो हमने देखा है कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज की डेफिनेशन क्या। अब इसको अवॉइड करने के लिए एसएससी क्या करेगा कि वो एक पर्सन को, नॉन रेसिडेंट को गुड्स ट्रांसफर करेगा या सर्विसेज देगा जो उसका एसोसिएटेड नहीं है, और जो अपना एसोसिएटेड एंटरप्राइज है उस कंट्री में, उसका और इसका लिंक लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, मुझे उसके साथ डील करना है। What I'll do is, I will not deal with him directly. हम बीच में एक पर्सन को खड़ा कर देंगे, ऑस्ट्रेलिया में एक पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि हम तुमको गुड्स सप्लाई करेंगे, फिर तुम वही गुड्स हमारे एसोसिएटेड एंटरप्राइज को सप्लाई कर देना, राइट? और फिर अपन गुड्स इस थर्ड पार्टी को सप्लाई करना चालू करेंगे या उससे इंपोर्ट, एज ए केस में भी, जो भी ट्रांजैक्शन है। तो इससे ये होगा कि आर्म्स लेंथ प्राइस लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन किसके साथ किया? नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ किया। तो गवर्नमेंट कहता है कि आप ऐसा करेंगे, आप एक थर्ड पार्टी को बीच में रख करके ट्रांजैक्शन करेंगे और इस हिसाब से टैक्स अवॉइड करेंगे। वी विल नॉट अलाउ दैट टू हैपन। तो उन्होंने क्या किया? ये क्लॉज बनाया। इसमें फाइनेंस एक्ट 14 का अमेंडमेंट भी है, ठीक है? तो दोनों देखते अपन, देखो साथ में। उन्होंने लिखा कि ट्रांजैक्शन इज डीम्ड टू बी बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। हालांकि आपका एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ नहीं है, लेकिन हम डीम करेंगे कि एसोसिएटेड के साथ। तो क्या लिखता है उसके अंदर? ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय एन एंटरप्राइज विद अ पर्सन अदर देन associated enterprise shall be deemed to be a transaction entered into between two associated enterprises, whether or not such person is non-resident, whether or not such person is non-resident, if, ये सब बताऊंगा मैं क्या है, if there exists a prior agreement, prior को underline कर लो, prior agreement in relation to the relevant transaction between such other person and the associated enterprise. तो ये जो अदर पर्सन है, वो जो अपन ने थर्ड पार्टी क्रिएट किया बीच में, वो और जो अपना एसोसिएटेड एंटरप्राइज था, उनके बीच में पहले से एक एग्रीमेंट है, प्रायर एग्रीमेंट,
और फिर मैंने उसको गुड सप्लाई किया। तो वहां पे उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट पहले करवा दिया कि मैं तुमको दूंगा, तुम मेरे एंटरप्राइज को दोगे, तो वो पहले बन गया और फिर मैं उसको गुड सप्लाई कर रहा हूं, तो इसको अपन मानेंगे डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, राइट। तो वहां पे प्रायर एग्रीमेंट है। और क्या लिखता है, और द टर्म्स ऑफ द रेलेवेंट ट्रांजैक्शन आर डिटरमिन्ड इन सब्सटेंस बिटवीन सच अदर पर्सन एंड द एसोसिएटेड एंटरप्राइज। यानी मेरे ऑस्ट्रेलिया का जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है उसने वहां थर्ड पार्टी के साथ पहले से एग्रीमेंट करके रखा है कि तुमको कितने में गुड्स आएगा और तुम मुझे कितने में सप्लाई करोगे। ये पहले से उनका डील होके रखा है। एंड अब ऐड क्या हुआ, फाइनेंस एक्ट 14 ने क्या ऐड किया है, एंड ये वर्ड ऐड किए, ईदर द एंटरप्राइज यानी अपन और द एसोसिएटेड एंटरप्राइज और बोथ ऑफ देम आर नॉन रेसिडेंट्स, तभी ये रूल लगेगा। यानी कि पहले क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है, देखो एग्जाम्पल नीचे दिया है। एग्जाम्पल में यह है कि ए और सी, वहां तो खैर लिखा भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं आपको कि ये जो ए है और ये सी है, ये दोनों क्या है, एसोसिएटेड है, दे आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। और फिर क्या हुआ कि ए ने गुड सी को नहीं बेचा, ए ने बी के साथ ट्रांजैक्शन किया। ए ने किसके साथ, बी। तो ये बी जो है ये थर्ड पार्टी, बीच की पार्टी, मैंने कहा ना बीच की पार्टी अपन क्रिएट करेंगे, तो इसको क्रिएट किया। अब बी और सी में जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो 31 मई को हुआ था, यानी पहले हुआ, और ए ने बी के साथ ट्रांजैक्शन किया 1 जून को, यानी इनके बीच में पहले से एक एग्रीमेंट होकर रखा है और फिर हमने इसको गुड सप्लाई किया। तो ये जो सप्लाई है ये अब क्या मानेंगे, डीम्ड टू बी विथ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। और जो पॉइंट ऐड हुआ है वो क्या हुआ है कि ये जो पर्सन है जिसके साथ अपन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, कोई भी हो, दोनों चलता है। दिस पर्सन बी कैन बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन ये जो अपना एसोसिएटेड एंटरप्राइज है सी जो है, या अपन खुद ए, इनमें से कोई भी एक, ए और सी, वन ऑफ देम शुड बी नॉन रेसिडेंट, या दोनों नॉन रेसिडेंट रहे तो भी चलता है, कम से कम दोनों में से एक तो नॉन रेसिडेंट होना ही चाहिए। दोनों रहे तो भी कवर करते हैं। ऊपर में अपन ने देखा ना कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसको कहेंगे, where one is a resident, another is non-resident, or both are non-resident, दोनों नॉन रेसिडेंट, या एक रेसिडेंट एक नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, कम से कम एक तो नॉन रेसिडेंट होना ही चाहिए ना, तभी ये चैप्टर लगेगा। तो इसलिए वो पॉइंट उन्होंने ऐड किया अभी कि ये ए और सी जो अपने दो एंटरप्राइज से पुराने वाले, ए एंड सी जो एसोसिएटेड है, उनमें से कम एक जो है वो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, और ये जो बीच का पर्सन है जिसको हमने सेटअप किया है, वो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट दोनों में से कोई भी हो सकता है। ही कैन बी एनी वन, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। लेकिन ये और ये जो ओरिजिनल एसोसिएटेड थे, उनमें से कोई भी एक कम से कम नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, तभी ये बी को अपन एसोसिएटेड मानेंगे और ये पूरा चैप्टर अपन उसको लगाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ए और बी का जो ट्रांजैक्शन हुआ, इट इज डीम्ड टू बी बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, तो ये ट्रांजैक्शन को आर्म्स लेंथ प्राइस लगाना होगा, आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना पड़ेगा, सिंपल। फिर उसमें एक एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ है लास्ट ईयर। ये एक्सप्लेनेशन इतने डिटेल में क्वेश्चन नॉर्मली आते नहीं है, बट स्टिल जस्ट वंस यू हैव टू गो थ्रू इट। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में क्या क्या इंक्लूड करना है वो उन्होंने दिया है। तो उसमें लिखा है इट इंक्लूड्स परचेज, सेल, ट्रांसफर और लीज और यूज ऑफ टैंजिबल प्रॉपर्टी, परचेज, सेल, ट्रांसफर, लीज ऑफ टैंजिबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, फर्नीचर वगैरह। तो फॉरेन से अपन इंपोर्ट करके ला सकते हैं, या अपन उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या यूज के लिए दे सकते हैं, है ना। फिर इंटेंजिबल में भी सेम है, इंटेंजिबल खरीद के ला सकते, दे सकते, सप्लाई कर सकते हैं, यूज के लिए दे सकते हैं, रॉयल्टी के अगेंस्ट वगैरह वगैरह। इंटेंजिबल्स भी है, इंटेंजिबल में सारे आपको मालूम है, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजी, सो एंड सो, कमर्शियल सीक्रेट्स, बहुत सारी चीजें हैं, इतने डिटेल में नहीं पढ़ने का। देन कैपिटल फाइनेंसिंग यानी लोन्स एंड बोरोइंग्स आर ऑल्सो कवर्ड बाय दीज ट्रांजैक्शंस, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट जो है उसको कम ज्यादा करके इनकम को शिफ्ट किया जा सकता है, राइट। दुबई में हमारे अंकल है, उनसे हमने लोन ले लिया और उनको 24% इंटरेस्ट दिया, जबकि इंटरनेशनल लोन्स में 12% इंटरेस्ट होता है, हमने उनको 24% दिया, तो इंडिया में एक्सपेंस को बढ़ा दिया और इनकम उनको हो गई फॉरेन में,
Then provision of service is also there. Then business restructuring और reorganization भी है उसके अंदर, amalgamations and all, वो भी इसमें कवर हो जाएंगे. और बाद में इंटेंजिबल प्रॉपर्टी का भी डेफिनेशन दिया है, वो मेरे हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं है. सीए बन जाओगे तब एक आध बार पढ़ लेना अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में जाना चाहते हो. इफ यू हैव इंटरेस्ट देयर देन गो एंड रीड वंस.